Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Machine Design in CAD 1, and today our topic of discussion is basically bolted joints. Now we'll see this topic, what kind of design parameters which are involved in this. So a bolted joint. Bolted joints are the type of the temporary joints. As the name suggests, bolts and nuts are used here to facilitate the joining of two parts. So when we talk about the joints, basically we have two types of joints: temporary joints and permanent joints. Regarding permanent joining techniques like welding and riveting, we have studied them in the lectures before midterm exam, and now we are focusing upon the design of the temporary joints. And the first case is basically the bolted joints. The first component of the bolted joint is of course the screw. When we talk about the bolted joints, the nut bolt assembly or the screw assembly is the basic theme, or you can say that that is the heart of or the theme of this type of joint. So when we design a bolted joint, basically we are designing the screw. It can be a cap screw with a hexagonal head or a rounded head type screw of various standards and sizes. Like you can see here, it's a nut bolt assembly, and this is the screw basically. Here you can also see it. In this joint, the bolt is inserted into a pre-drilled hole. So like riveting case, in this case also you have to drill a hole before you are inserting your bolt inside. From the other side, the nut is running to tighten the joint. So जो इसका दूसरा मेटिंग पार्ट है वो नट है, यानी कि एक ड्रिल्ड होल है, दो प्लेट्स के दरमियान आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन यू वांट टू मेक सच टाइप ऑफ अ जॉइंट कि आप उसको बाद में खोल सकें. तो क्या करेंगे कि आप ड्रिल की मदद से दोनों के अंदर होल करेंगे उनको अलाइन करके, एंड देन यू विल इंसर्ट अ बोल्ट और स्क्रू एंड यू विल टाइट इट विद द हेल्प ऑफ अ नट. The nut can be removed when required to dismantle the assembly so that the joints can be undone. So again, it's a temporary joining technique. Spanners of various standards are available to tighten or loosen the bolt by the application of the torsional forces. So if you require to untie, or you can say that you have to separate the plates, you need to basically unbolt it. तो उसके लिए आपके पास different types के spanners हैं, आपके पास screw drivers मौजूद हैं, उनसे आप इसको खोल सकते हैं. One has to remember allowing access and also the clearance for using this tool when dressing a bolted joint subjected to service place limitations. That is important. ऐसी तमाम जगह जहाँ पे आप इस टाइप के जॉइंट्स लगाते हैं, जहाँ पे आपके नट बोल्ट की असम्बली इन्वॉल्व होती है और आपको ओवर द टाइम जो है उसकी सर्विसेज जो है वो रिक्वायर्ड होती है, यू हैव टू सर्विस दैट पार्ट. तो आपको इतनी क्लियरेंस रखनी पड़ती है कि बाद में जब उसको सर्विस करना पड़े तो आप जो है इजीली उसके अंदर टूल इंसर्ट करके स्पैनर की मदद से जो है उस जॉइंट को खोल सकें. यू हैव सीन दैट अगर आपने कभी गाड़ी या बाइक की सर्विस करवाई तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट्स आर इन्वॉल्व. तो अगेन वो जो आपका मैकेनिक होता है वो स्पैनर्स की मदद से उनको खोल रहा होता है. वो खोल सिर्फ इसलिए पाता है कि उन्होंने जो है वो क्लियरेंस दी हुई है कि टूल इंसर्ट होकर उसको खोल सके. Screw joints. Screw joints is sometimes considered as a separate type, but it is actually the variation of a bolted joint. The difference is that a screw is used rather than a bolt. Then requiring an internal threading is one of to be the jointed part. अब basic difference क्या है आपके नट बोल्ट असेंबली में और स्क्रू असेंबली में. स्क्रू जो है वो आपने अक्सर देखा होगा, आप घरों में दीवारों में ड्रिल करते हैं या आप किसी लोहे के पीस के अंदर ड्रिल करते हैं. उसके बाद जो है वो आप प्लास्टिक की उसके अंदर जो है वो एक इंसर्ट कर देते हैं कैपिंग से. उस कैपिंग के अंदर इंटरनल थ्रेड्स होते हैं, तो आप उसके अंदर स्क्रू टाइट कर देते हैं और वो उस पार्ट के ऊपर टाइट हो जाता है. सो बेसिक डिफरेंस ही है आपके स्क्रू और नट बोल्ट में. नट बोल्ट में आपके पास दो मेटिंग पार्ट्स होते हैं, वन इज नट एंड अदर इज द बोल्ट. लेकिन स्क्रू के केस में सिंगल पार्ट होता है, वो एक आपके पास जस्ट स्क्रू होता है, आप उसको इंसर्ट कर देते हैं और आपकी जो बेस प्लेट है उसको आप इंटरनली थ्रेड डालते हैं. तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस. This can save space. However, continuous reuse of the thread would probably damage the coil, making the whole part unsuitable. इस केस में क्या होता है कि नट और बोल्ट जो असम्बली है आप उसको बहुत फ्रीक्वेंटली टाइट और अनटाइट कर सकते हैं. स्क्रू के केस में क्या है कि क्योंकि आपने मेटिंग पार्ट के अंदर इंटरनल थ्रेड्स बनाए हुए हैं, तो ज़्यादा दफ़ा आप उसको खोलें या बंद करेंगे तो वो जो आपके थ्रेड्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे और पार्ट का जो है वो डैमेज होने का.
A screw thread is formed by cutting a continuous helical grooves on a cylindrical surface. The helical grooves may be cut either right hand or the left hand, यानी कि आपने उसको लेफ्ट हैंड उसकी टाइट होना चाहिए उसको ये लेफ्ट हैंड यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. A screw joint is mainly composed of two elements, bolts and the nuts. The screw joints are widely used where the machine parts are required to be readily connected or disconnected without damaging to the machine or the फास्टनिंग. अगेन इट्स अ टेम्परेरी जॉइनिंग टेक्निक. तो उसका जो बेसिक थीम है वो है ये कि आपने उसको डिसमेंटल करना है ओवर द टाइम. दिस मे बी फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग और एडजस्टमेंट इन असेंबली और सर्विस इंस्पेक्शन, रिपेयर और रिप्लेसमेंट, और इट मे बी द मैन्युफैक्चरिंग असेंबली रीजन. These are the basic reasons. These are some of the advantages and disadvantages of the screw joints. When we talk about the advantages of the screw joints are highly reliable in operation. यानी कि आप इनके ऊपर रिलाय कर सकते हैं. आपने अक्सर देखा होगा घरों की छतों में जो आप सीलिंग फैंस लगाते हैं वो एक नट बोल्ट की मदद से जो है वो पूरी पूरी लाइफ जो है वो टिका होता है. So that's how reliable they are. Screw joints are convenient to assemble and disassemble. You need just a spanner. एक आम सा स्पैनर मार्केट से मिलता है और आप बड़ा इजीली उसको खोल सकते हैं. A wide range of screw joints may be adapted to the various operating conditions. Screws are relatively cheap to produce due to standardization and highly efficient manufacturing process. क्योंकि आपके पास जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है चार्ट्स के अकॉर्डिंग उनमें इनके स्टैंडर्ड साइजेस हैं, उनमें कोई खास वेरिएशंस नहीं है. सो अनलेस एंड अनटिल आपने किसी भी स्पेसिफिक मशीनरी के लिए कोई स्पेसिफिक स्क्रू बनाना है उसको छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो स्टैंडर्डाइज हैं साइजेस. जैसे आपके पास साइज 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इनको बनाना जो है वो ईजी. और दैट्स व्हाई दे हैव सीन disadvantages. The main disadvantage of the screw joint is the stress concentration in the threaded portion, which are vulnerable points under the variable and the loading conditions. क्योंकि स्क्रू के अंदर या आपका जो बोल्ट है उसके ऊपर जो है वो आपने थ्रेड्स डाले होते हैं. जहाँ पे आपके थ्रेड्स मौजूद होंगे वहाँ पे स्ट्रेसेस की कंसंट्रेशन होगी. तो ये इसका वल्नरेबल हिस्सा है. तो जब भी आपके पास स्क्रू असेंबली या बोल्ट असेंबली टूटेगी वो यहीं से टूटेगी. The strength of the screw joint is not comparable with that of riveted and the welded joints. ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है क्योंकि आपके पास riveted joints और जो welded joints है they are more strengthened as compared to a screw joint. Important, these are some important terms that we use in the design case for the screw threads or the screw joints. Following terms are used in the screw thread as shown in the figure. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो आपके पास डाया अवेलेबल है इसकी शेंक का दैट इज नोन एज द नॉमिनल डाया ऑफ द स्क्रू. ठीक है जी. तो ये आपके पास थ्रेड्स के अपर पोर्शन से जो आपके पास टॉप पोर्शन तक का जो आपके पास डाया है इस डाय को कहते हैं जी मेजर डाया. इसके बाद जहाँ पे आपके थ्रेड की रेस्ट है यानी कि नीचे का जो पोर्शन दोनों साइड से जो रूट से आपके पास डाया अवेलेबल है दैट इज नोन एज द माइनर डाया. और इनके दरमियान में जो एक इमेजिनरी सर्कल हम बनाते हैं जिसको हम पिच सर्कल कहते हैं वहाँ से जो हम डाया लेते हैं दैट डाया इज नोन एज द पिच डाया. अगेन पिच इज द डिफरेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स. जो आपके पास डिस्टेंस आएगा दो स्पेसिफिक थ्रेड्स का करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के ऊपर इसको पिच कहते हैं. जो टॉप पोर्शन होगा आपके थ्रेड का अपॉन द स्क्रू दैट इज नोन एज द क्रस्ट और जो बॉटम पोर्शन होगा दैट इज नोन एज द रूट. ठीक है जी. और स्लोप जो है दैट इज कि आपने इसको जो है वो कितना इंक्लाइन किया. ये जो इसके थ्रेड्स का ये वाला आपके पास टिल्टेड पोर्शन होता है दिस पोर्शन इज नोन एज द फ्लैंक एंड दिस इज बेसिकली द थ्रेड एंगल. Major diameter, it is the largest diameter of an external or internal screw thread. The screw is specified by its diameter. It is also known as outer or the nominal diameter. So जो major dia है यही इसके साइज को स्पेसिफाई करता है और इसको आउटर और नॉमिनल डाया भी जो है वो कहा जाता है. When we talk about the minor dia, it is the smallest diameter of an external or the internal screw thread and it is also known as core or the root dia. Third term is known as the pitch dia. It is the diameter of the imaginary cylinder or a cylindrical screw thread, the surface of which would pass through the thread at the point as to make the equal width of the thread and the width of the space between the threads. It is also called the effective diameter. In a nut bolt assembly, it is the diameter at which the ridges of the bolts are in complete touch with the ridges of the corresponding nuts.
तो ये जो पिच डाया है इमेजिनरी सर्कल का, ये वो है जहाँ पे आप जब नट और बोल्ट को टाइट करते हैं, इनके थ्रेड आपस में सेंटर पोर्शन के अंदर एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज द पिच डाया। उसके बाद आपके पास आ जाती है पिच। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द करिस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट। इट इज मेजर्ड इन द एक्सियल डायरेक्शन, यानी कि एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर, लाइक फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान, between the corresponding points। पिच जो है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी। इसके बाद आती है स्क्रू। जब स्क्रू की बात होगी तो स्क्रू की लीड की बात होगी। एंड व्हाट इज लीड, कि जब आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन देते हैं अपने स्क्रू को, तो उसके नतीजे में वो एक्सियली कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू corresponding points on the same helix, यानी कि it is defined as the distance which a screw thread advances axially in one rotation of the line। लीड इज इक्वल टू द पिच इन केस ऑफ सिंगल स्टार्ट थ्रेड। अगर आपका सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो यही लीड जो है ये पिच के इक्वल होगी, और अगर ये आपके पास डबल स्टार्ट है तो ये ट्वाइस हो जाएगी, ट्रिपल स्टार्ट है तो ये 3 टाइम्स हो जाएगी। crest, it is known as the top surface of the thread। When we talk about the root, it is the bottom surface thread created by the two adjacent flanks of the thread। Depth of the thread, it is the perpendicular distance between the crest and the root। And when we talk about the flank, it is the surface joining the crest and the root। उसके बाद आपके पास angle of the thread, it is the angle included by the flank to the thread। And what is slope, it is half of the pitch, that is known as slope। so ये आपके पास बताया हुआ है। ये आपके पास सिंगल स्टार्ट थ्रेड है जी, ये आपके पास डबल स्टार्ट थ्रेड है। ये देखें दो तरफ से उसने इसको थ्रेड दिए हुए हैं। ये फोर्स आपके पास स्टार्ट है, तो ये आपका डिफरेंट स्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनको दिखाया हुआ है। Forms of the screw thread, these are basically some of the standards specified by the nations for the manufacturing of the screws। When we talk about the British standard Whitworth, that is known as BSW thread screws। This is the British standard thread profile and has a coarse diameter। कोर्स और फाइन दो तरह के आपके पास थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं। इनकी डिफ्रेंसिएशन की हुई है आपने डिज़ाइन डाटा शीट के मुताबिक, आगे टेबल आएगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इट हैज़ अ सिमेट्रिकल वी थ्रेड, ये इसके ऊपर जो थ्रेड्स होते हैं ये वी शेप के होते हैं। एंड द एंगल ऑफ फ्लैंक जो है इसके अंदर BSW के अंदर दैट इज 55 डिग्री। These threads are found on the bolts and the screwed fastening for the special purposes। ये special purpose application के लिए यूज किए जाते हैं। The various proportions of BSW threads are shown in this figure। ये इनकी हाइट्स बताई हुई हैं, मेजर डाई की, माइनर डाई की। The British standard threads with fine pitches, ये सेकंड आपके पास इसका स्टैंडर्ड है। BSF ये आपके पास कोर्स के लिए था, अब नाउ दिस इज फॉर द फाइन पिच। They are used where great strength at the root is required। These threads are also used for the line adjustment and where the connected parts are subjected to increased vibration as in aerospace and automobile work। The British standard pipes, ये इसका थर्ड आपके पास स्टैंडर्ड है BSP threads। BSP threads with fine pitches are used for steel and iron pipes and tube carrying the fluids। उसके बाद जो सेकंड आपके पास मेजर स्टैंडर्ड है दैट इज ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, BA threads। This is also known, this is a BSW thread with a fine pitch। The proportions of BA threads are shown in this figure। These threads are used for instruments and other precision work, and here the angle basically is 47.5। उसके बाद आपके पास जो थर्ड स्टैंडर्ड है दैट इज अमेरिकन नेशनल थ्रेड स्टैंडर्ड। द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड और द US इज नोन एज द सेलर्स थ्रेड। अब इस केस में क्या है कि फ्लैट क्रस्ट आपके पास अवेलेबल होती है। पहले जितने भी थे टॉप पोर्शन भी अगर आपके पास यूं था और बॉटम पोर्शन भी आपके पास यूं बिल्कुल सीधा था, लेकिन अमेरिकन स्टैंडर्ड में इन्होंने इनको फ्लैट कर दिया, टॉप और बॉटम पोर्शन को। इन्होंने बेसिकली स्ट्रेसेस को रिमूव करने की कोशिश की। These threads are used for general purposes on nut holes and tab holes। नेक्स्ट है आपके पास यूनिफाइड स्टैंडर्ड थ्रेड।
The three countries, Great Britain, Canada and United States, came on agreement for a common screw thread system which includes an angle. Flag angle जो है वो इस standard के अंदर जो है that is 60 degrees. In order to facilitate the exchange of machinery between these nations, the threads has the rounded crust and the rows. जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ब्रिटिश जो थे उनके यहाँ यहाँ पे टॉप और बॉटम जो पोर्शन थे ये बिल्कुल आपके पास जो थे वही कोने बने हुए थे और अमेरिकन ने इनको फ्लैट कर दिया था। अब ये तीन कंट्रीज ने जब एग्रीमेंट किया कि हमने कॉमन बनाने हैं तो इन्होंने क्या कर दिया कि ना फ्लैट रखा ना उसको जो है वो बिल्कुल कॉर्नर किया बल्कि इसको जो है वो थोड़ा सा टेपर कर दिया, यानी कि ये जो टॉप पोर्शन है इसको थोड़ा सा एंगुलर बना दिया। उसके बाद जो फिफ्थ के ऊपर है, दीज आर द स्क्वायर थ्रेड्स। द स्क्वायर थ्रेड बिकॉज ऑफ देयर हायर एफिशिएंसी आर वाइडली यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन वन डायरेक्शन। ये आपके पास स्क्वायर थ्रेड्स है, यानी कि यहाँ पे टोटली जो है ये फ्लैट असेंबली है आपके पास। एंड द लास्ट आर नोन एज द एक्मी थ्रेड्स। ये आपके पास जो है जस्ट लाइक द गियर असेंबली या गियर थ्रेड्स की तरह होते हैं, जैसे हमने टूथ प्रोफाइल गियर की पड़ी हुई है। It is the modification of the square threads and they are much stronger than the square threads and can easily be produced. These threads are frequently used on screw cutting lathe, brace valves, forks and bench vices. ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपके पास कॉमन टाइप्स ऑफ स्क्रू टाइटिंग। ये कुछ आपके पास स्क्रू फास्टनिंग की टाइप्स हैं। थ्रू बोल्ट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्क्रू टाइटनिंग के लिए। अब थ्रू बोल्ट कैसा है कि एक आपके पास बोल्ट है जो दोनों बेस प्लेट के अंदर से थ्रू हुआ है और उसके टॉप या बॉटम के ऊपर एक साइड पे भी कैप हो सकती है, दोनों साइड पे भी है वो कैप हो सकती है, यानी कि दोनों साइड पे आपने इसको बोल्ट से नट से जो है वो टाइट किया हुआ है, या एक साइड पे आपके पास कैप है और दूसरी साइड पे बोल्ट लगा है। It is a cylindrical bar with the threads for the nut at one end and the head is at the other end. The cylindrical part of the body is known as the shank. The through bolts are, according to their use, may be known as machinery bolts, carriage bolts, automobile bolts, and eye bolts. Next is known as the tab bolt. Tab bolt की अगर आप बात करें, a tab bolt or a screw differs from a bolt. It is screwed into the tabbed hole of one of the part and to be fastened without the nut. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इसके टॉप का जो है ये इसका हेड है, जो आपके पास बेस प्लेट है उसके अंदर टैपिंग हुई हुई है, यानी कि उनके अंदर इंटरनल थ्रेड्स अवेलेबल हैं और नीचे कोई बोल्ट नहीं है और ना ही ये थ्रू हुआ हुआ है, तो ये इसके अंदर ही टाइट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टैप बोल्ट। द लास्ट वन इज नोन एज द स्टड। ये आपको स्टड दिखाया। A stud is a rounded bar studded at the both ends. One end of the stud is screwed into the tabbed hole of the part to be fastened, while the other end receives a nut on it. The studs are chiefly used instead of tab bolts for the securing various kind of covers, covers of engines, pump cylinder, valves and chassis. तो स्टड के केस में क्या है कि बजाय इसके कि आपके पास यहाँ पे जो है इसका जो टॉप पोर्शन है उसके ऊपर नट हो, ये यहाँ पे जो इसकी असेंबली है ये बिल्कुल ऐसी होती है। तो आपने जिस बेस प्लेट के अंदर एक में टैपिंग की हुई है तो दोनों में रिवर्स जो है वो टैपिंग होगी, तो ये जो दो मेटिंग पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ टाइट हो जाएंगे, इनके ये जो थ्रेड्स हैं ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर है। कॉमन टाइप्स ऑफ द स्क्रू फास्टनिंग। Cap screws. The cap screws are similar to the top bolts except that they are of small size and the variety of shapes of the heads are available. Cap screws के अंदर आपके पास एक कैप बनी होती है और कैप की जो है वो डिफरेंट आपके पास असेंबलीज हो सकती हैं उनको टाइट और अनटाइट करने के लिए। ये जैसे आपके पास एक हेक्सागोनल हेड है, सेकंड जो है ये आपके पास क्लिस्टर हेड है, इसको जो है वो आप एक मुंह वाला जो पेस्ट है जिसको आप कहते हैं स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं। फिर ये राउंडेड हेड है, ये फ्लैट हेड है आपके पास। उसके बाद ये हेक्सागोनल सॉकेट है जिसके अंदर एल कीज की मदद से आप इनको खोलते हैं। द लास्ट वन इज नोन एज स्ट्रटेड सॉकेट। ये भी आपके पास जो है ये बेसिकली एल कीज की मदद से खुलते हैं। दीज आर द डिफरेंट cap shapes of the screws. Machine screws, these are similar to the cap screws with the head slotted for the screwdriver. They are generally used with a nut. तो इन स्क्रूज में आपके पास नट होता है, ये नट बोल्ट असेंबली में आते हैं और इनके में आपके पास कैप नहीं होती। Common types of the screw fastening. So these are the design parameters. Set screws. These are used to prevent the relative motion between two parts. A set screw is screwed through a threaded hole in one part so that its point presses against the other part.
This resists the relative motion between two parts by means of the friction between the point of the screws in one of the part. तो सेट स्क्रूज जो हैं ये बेसिकली आपके पास यूज़ किए जाते हैं जब आपके दो पार्ट्स की जो relative motion है उसको रोकना. They may also be used instead of a key to prevent the relative motion. तो जब आपके पास शाफ्ट जो हैं उनकी स्लिपेजेस जो हैं उसको कंट्रोल करना होता है आपने कि पावर ट्रांसमिशन के केस में आप जो है वो की इंसर्ट कर देते हैं क्वार्टर के साथ कि स्लिपेज ना हो. तो उसका एक अल्टरनेटिव ये भी है कि आप सेट स्क्रू जो है वो यूज़ करते हैं बिटवीन हब एंड शाफ्ट इन लाइट पावर ट्रांसमिशन. ठीक है जी. They may also be used in connection with the key where they prevent the relative axial motion of the shaft. The diameter in that case of a set screw is obtained through this equation. अगर set screw का आपने डाया लेना है तो this set screws dia is equals to d which is equal to 0.125 capital D plus 8 mm. यहाँ पे जो आपके पास कैपिटल D है ये डाया ऑफ द शाफ्ट है और जो स्मॉल d आएगा वो आपके पास स्क्रू का डाया आ जाएगा. ठीक हो गया जी. द टेंजेंशियल फोर्स इन न्यूटन अगर आपने टेंजेंशियल फोर्स जो है वो इसकी फाइंड आउट करनी है दिस फोर्स इज इक्वल टू 0.6.6 इंटू डी रेज टू पावर 2.3. अब यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स लग रही होगी आपके सेट स्क्रूज के ऊपर वो होगी 6.6 और ये डाया ऑफ द स्क्रू होगा और उसकी जो पावर है आपके पास दैट इज 2.3. टॉर्क ट्रांसमिशन जो है वो सेट स्क्रूज में क्या होगी द टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ ये जो आपने टेंजेंशियल फोर्स निकाली है मल्टीप्लाइड बाय आर यानी कि डी बाई 2. यहाँ पे जो आपके पास रेडियस है वो रेडियस ऑफ आपके पास जो है वो शाफ्ट है यानी कि जो शाफ्ट आपके पास पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज हुई थी उसका ये आपके पास रेडियस है और पावर ट्रांसमिशन का वही आपके पास फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2 पाई एन टी ओवर 60. ठीक है जी. यहाँ पे एन जो है वो बेसिकली आर पी. So these are the locking devices. ये different types की हैं. आगे चलते हैं. ये डिज़ाइन पैरामीटर ऑफ द स्क्रू है. सबसे पहले जो है वो साइज डेजिग्नेशन. आप इसको साइज डेजिग्नेट कैसे करते हैं. द साइज ऑफ अ स्क्रू थ्रेड इज डेजिग्नेटेड बाय द लेटर M फॉलोड बाय द डायमीटर और द पिच. यानी कि जहाँ पे भी आप स्क्रू की बात करेंगे तो आपको M के आगे जो है वो एक साइज लिखा हुआ मिलेगा स्क्रू के केस में या नट बोल्ट के केस में. यानी कि M20, M30, M40, M60 जो 40 या 60 जो भी आगे इसके नंबर लगा हुआ है वो जो है वो इसकी पिच या डायमीटर जो है उसको बताता है. द टू बीइंग सेपरेटेड बाय अ साइन x. तो इनके दरमियान जो है ये मल्टीप्लिकेशन साइन जो है वो आप यूज़ कर देते हैं. पिच और डाई अगर दोनों आपने लिखे हैं तो अगर एक ही लिखा है तो वो जस्ट आपके पास आ जाएगा M20 M30. When there is no indication of the pitch, it shall mean that the coarse pitch is applied. अगर मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ पिच आगे नहीं दी हुई तो हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास कोर्स पिच है. टॉलरेंस डेजिग्नेशन. अ फिगर designating a tolerance grade is include below 7 for the fine grade and 8 for the nominal grade and 9 for the coarse grade. तो अगर आपके पास पिच से आगे भी कोई नंबर लगा हुआ है यानी कि अगर 7 है तो जो हमें बताएगा कि ये आपके पास फाइन पिच का है या फाइन ग्रेड का है. 8 जो है वो बताएगा कि ये नॉमिनल ग्रेड का है और 10 जो है 9 जो है ये आपको बताएगा कि ये कोर्स ग्रेड. A letter designating the tolerance position is indicated by a letter H for the unit thread, D for the bolt thread with allowance and H for the bolt head without allowance. तो ये आपके पास जो है इसकी शेप के लिए ये डिफरेंट 3 नंबर. फॉर एग्जांपल नीचे अब ये बताया हुआ आपके पास ये नंबर है M6-8T. तो ये आपके पास 6 इसका mm जो है वो साइज है. M ये बता रहा है कि ये स्क्रू यानी कि नट बोल्ट असेंबली है. आगे D जो है D से पहले आपके पास 8 है तो 8 जो है ये हमें बता रहा है कि ये नॉर्मल ग्रेड की पिच है इसकी. और उसके आगे आपके पास D है तो D यहाँ से हमें क्या बता रहा है कि ये बोल्ट थ्रेड विद अलाउंस है. तो ये इस तरह से जो है ये लिखा जाता है. तो दीज आर द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ द स्क्रू थ्रेड. ये आपके पास सीरीज बताई हुई है. ये कोर्स सीरीज है आपके पास M0.4 से लेके M1.4 तक और जो आपके पास फाइन सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है M8 मल्टीप्लाई बाय 1 से लेके M14 इंटू 1.5. जब आप ये एक बेसिक साइज का आप कह लें कि एक सिंगल चार्ट है for the designing of the standard
स्क्रूज, इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा आप इस डिज़ाइन डेटा शीट से जो है बाकी के सारे पैरामीटर जो है वो मैच करके न्यूमेरिकल के अंदर पुट करेंगे। यानी कि अगर हम कोड सीरीज की बात करें, आपको लिखा आ रहा है जी M0.4, तो आप यहाँ से इसकी पिच देखेंगे, इसकी पिच कितनी है जी 0.1। मेजर डाया जो है इसका दैट इज 0.4। जैसे आपको बताया था कि ये वाला जो नंबर है ये इसका नॉमिनल डाया आपको बता रहा है, दैट इज इक्वल टू 0.4। इसका इफेक्टिव डाया जो है यानी कि पिच डाया जो है दैट इज 0.33। माइनर डाया जो है वो आपको बोल्ट का भी ये बता देगा, इसके अगेंस्ट ये होगा 0.27, और नट का भी बता देगा कि दैट इज 0.92। इसी तरह डेप्थ भी इसकी पता चल जाएगी। डेप्थ क्या है आपका, इसके क्रस्ट और रूट के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 0.061, यानी कि डेप्थ कितनी है थ्रेड की। और आगे इसका जो स्ट्रेस के लिए इफेक्टिव एरिया है वो भी आप बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर आपको लोड दे दिया है कि लोड इतना लोड है और उसके लिए जो है वो आपने एक स्क्रू डिज़ाइन करना है, और आप यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से ये वैल्यू उठाएंगे कि M0.4 के लिए आपने अगर उसको डिज़ाइन करना है तो दैट इज़ द इफेक्टिव एरिया। आप जो है इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्ट्रेसेस निकल आएंगे कि कितने स्ट्रेसेस जो हैं वो लग रहे हैं आपके M0.4 कोर सीरीज के स्क्रू के ऊपर। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी सिंपल है। Stresses in screw fastening due to the static loading. Following stresses are in screw fastening due to the static loading are important from the subject point of view. Internal stresses due to screwing up the forces, stresses due to the external forces, and stresses due to the combination of the forces. तो तीन तरह के बेसिकली स्टैटिक स्ट्रेसेस जो हैं वो आपके नट स्क्रू जो है असेंबली या नट बोल्ट असेंबली जो है उसके अंदर लग रहे हैं। पहला जो है कि जैसे ही आप नट बोल्ट असेंबली को टाइट करते हैं उसके नतीजे में जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेसेस हैं, पहला वो। दूसरे जो हैं वो जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है बेस प्लेट के ऊपर, जिन दो बेस प्लेट्स को आपने जोड़ा है वो वाले स्ट्रेसेस। और जो तीसरे स्ट्रेसेस हैं वो कंबाइन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो है वो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। तो इस तस्वीर में अगर आप देखें जो आपके पास फर्स्ट है, ये आपका जो इसके अंदर इसका शैंक है स्क्रू का, या आपके पास बोल्ट का, ये सारे का सारा जो है ये बिल्कुल क्रशिंग के बिल्कुल उसके ऊपर है। देखेंगे बिल्कुल मिसअलाइन हुआ हुआ है, टूटने वाला। फिर सेकंड है उसके ऊपर काम है, थर्ड के ऊपर और उसके काम है, फोर्थ के ऊपर काम है। और जो अगेन दूसरे साइड से आपके पास है उसके ऊपर भी जो है वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बिकॉज टेंसाइल फोर्सेस लग रही हैं। अपर फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर है, बोर लोअर जो है वो राइट डायरेक्शन के अंदर है। बेस प्लेट्स को अपनी तरफ खींच रही हैं, और ये जो क्रशिंग होने जा रही है आपके स्क्रू की, तो जो आपके पास सबसे आगे हैं उसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो जनरेट होगा। अच्छा, दीज आर सम ऑफ द डिज़ाइन पैरामीटर्स की जो बेसिकली आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं जो आप यूज़ करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द बोल्ट, ये अभी हमने स्ट्रेचिंग देखी है बोल्ट की यहाँ पे। Since none of the above mentioned stresses are accurately determined, therefore the bolts are designed on the basis of the direct tensile stresses. The initial tension in the bolt, जो इनिशियल टेंशन है वो किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास फार्मूला ये है कि अगर आपने फोर्स निकालनी है यानी कि लोड निकालना है, तो उसके लिए जो फार्मूला है आपके पास पी आई यानी कि इनिशियल टेंशन या इनिशियल लोड जो है दैट इज इक्वल टू 2840 इंटू डी एल। यहाँ पे जो पी आई है दैट इज द इनिशियल टेंशन, डी जो है वो नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट इन एम एम। तो ये जो एन है ये बेसिकली आपके पास न्यूटन, ठीक है जी। तो ये फोर्स न्यूटन में आपके पास आएगी 2840 इंटू डाया ऑफ द स्क्रू। The above relation is used for making a joint fluid tight, like steam engine cylinder cover joints. तो ये जो आपके पास इस इक्वेशन से आप फोर्स निकालेंगे वो उस स्क्रू के लिए निकालेंगे जिसको आपने फ्लूइड टाइट करना है। When the joint is not required to tight for the fluid tight joint, then the initial tension in the bolt may be reduced. तो ये हाफ हो जाएगी। अगर आपको फ्लूइड टाइट जॉइंट नहीं चाहिए, आपकी एप्लीकेशन ऐसी है, तो इस केस में जो इनिशियल टेंशन आएगी दैट इज 1420, यानी कि ये 2800 की हाफ है, 1400। सो 1420 इंटू डाया, ये भी न्यूटन से। If the bolt is not initially stressed, then the maximum safe axial load may be applied by this formula. P is equal to permissible stresses multiplied by the cross-sectional area. Here the stress area is pi by 4 dP plus dC divided by 2. Here the dP is the pitch dia and dC is the core or the minor dia.
अगर आपको डिज़ाइन डेटा शीट का सहारा नहीं लेना और आपको स्ट्रेस एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला आपके पास ये है। यहाँ पे आप एवरेज एरिया ले रहे हैं बेसिक। Initial stresses due to the screwing up forces. The torsional shear stress is caused by the frictional resistance of the thread during its stretching. तो जो आपके पास टॉर्जनल फोर्सेस जनरेट होंगी आपके पास अगेन द फॉर्मूला इज सेफ टॉर्जन का T बाई जे दैट इज इक्वल टू टॉ बाई आर। यहाँ पे अगर आपने टॉर्जन निकाल लिया है या आपने shear स्ट्रेस निकाला है तो टॉ इज इक्वल टू T बाई जे मल्टीप्लाई बाई आर। तो जो है आपके पास टॉर्जनल shear स्ट्रेस यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी। टॉर्क जो है वो हम पीछे डिज़ाइन में निकाल चुके हैं। टॉर्क का फार्मूला गिवन है। ये जो है दैट इज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 5/32 डी सी रेज टू पावर 4 और डी सी जो है वो वही आपके पास जो है ये माइनर और द कोड है। तो जो आपके पास अल्टीमेट इक्वेशन बनेगी इसकी दैट इज 16 इंटू टॉर्क डिवाइडेड बाई पाई डी सी क्यूब। ठीक है। इनिशियल स्ट्रेसेस ड्यू टू द स्क्रूइंग अप फोर्सेस। अब जो स्क्रूइंग अप फोर्सेस की वजह से स्ट्रेसेस लग रहे होंगे तो जैसे हमने रिवेटिंग के केस में कहा था कि क्रशिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है, टेंशन है, इसी तरह इनमें भी उसी तरह के स्ट्रेसेस जो हैं वो जनरेट होंगे। सो द shear stresses across threads। तो शेयरिंग हो रही है अगर आपके थ्रेड्स के अंदर द एवरेज थ्रेड शेयरिंग स्ट्रेसेस फॉर द स्क्रू। तो ये आपका फार्मूला होगा P डिवाइडेड बाय पाई डी सी मल्टीप्लाइड बाय B इंटू F। तो यहाँ पे आपका P इनिशियल टेंशन है, पाई डी सी आपको नोन है, डी सी कोड आया है आपके पास, B सिर्फ एक जो है वो नया पैरामीटर है। ये आपके पास होती है विड्थ ऑफ द थ्रेडेड सेक्शन एंड द रूट। ये आपको गिवन होगी वैल्यू या डिजाइन शीट से आप लेंगे। और यहाँ पे जो है आपके पास आगे का जो फार्मूला है वो है द एवरेज shear stresses फॉर द नट। जब आप नट की बात करेंगे तो ये आपके पास टॉ एन हो जाएगी। पहले हम स्क्रू की बात करें तो यहाँ पे P डिवाइडेड बाय पाई डी मल्टीप्लाई बी इंटू एन। तो जब आप नट की बात करेंगे तो फिर आप कोर डाया नहीं लेंगे, आप मेजर डाया लेंगे। बेसिक आपके पास डिफरेंस यही है इस फॉर्मूले के अंदर। उसके बाद है कंप्रेशन और द क्रशिंग। क्रशिंग की अगर हम बात करें तो क्रशिंग के लिए आपके पास जो रिलेशन होगा इस केस में दैट इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द एन। तो D जो है वो मेजर डाया है, DC जो है वो आपका माइनर और द कोर डाया है, एंड इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स इज द एंगेजमेंट। यानी कि सिंगल है, डबल है, 3 है, वो भी आपको मेंशन होगा क्वेश्चन। लास्ट जो है वो आपके पास बेंडिंग है जी। बेंडिंग स्ट्रेसेस इफ द सर्फेसेस अंडर नट हेड आर नॉट परफेक्टली पैरेलल। अगर आप इन दो प्लेट्स की बात करें तो बॉटम प्लेट जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो अपर प्लेट है वो आपके पास एक टिल्टेड प्लेट है। तो जब आप इस बोल्ट को इस नट के ऊपर टाइट करेंगे तो या आप इस स्क्रू को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये जो आपके पास स्क्रू की असम्बली है ये बेंडिंग में चली जाएगी और इसके ऊपर जो है वो बेंडिंग स्ट्रेसेस आ जाएगी। तो इस तरह की असम्बलीज के अंदर इसका जो मोड ऑफ फेलियर है वो मोस्टली जो है वो बेंडिंग होगा। और उसके इसमें आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा बी इज इक्वल टू एक्स ई डिवाइडेड बाई 2L। एक्स जो है ये आपके पास इस पोर्शन और इस पोर्शन का जो है ये डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस इन द हाइट्स बिटवीन द एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द नट। फर्स्ट कॉर्नर और ये आपके पास सेकंड कॉर्नर जो है। तो ये जो नट के दो कॉर्नर्स का दरमियान का जो डिफरेंस है आप इसको विद द हेल्प ऑफ स्क्रू क्या उसको करते हैं वन ईयर कैलिपर की मदद से जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे इस एक्स की वैल्यू को। एल जो है इस केस में वो लेंथ ऑफ द शैंक है और ई जो है वो आपको पता है यंग मॉड्यूलस है, वो मटेरियल डिपेंडेंट है। जो भी मटेरियल होगा आपके बोल्ट का या नट का उसकी वैल्यू जो है आपको कर। तो दीज आर द एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट। अभी इस केस में अगर आप देखें तो डिटरमिन द सेफ टेंसाइल लोड फॉर ए बोल्ट ऑफ M30 assuming the safe tensile stresses of 42 megapascal। तो गिवन जो है उसने हमें कहा जी M30 बोल्ट आपने लेना है और डिज़ाइन आपने उसके लिए सेफ टेंसाइल लोड जो है सॉरी डिज़ाइन क्या करना है जी, लोड ही डिज़ाइन करना है इस केस में। और स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है उसने दी है 42 मेगापास्कल। अब आपके पास जो है वो M30 का बोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके पास इसका जो डाया है दैट इज 30, जो इसका इफेक्टिव डाया जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन। उसी टेबल से हम देखेंगे ये कोड सीरीज का आपके पास है
और इसके अगेंस्ट M30 वहाँ पे मौजूद है। M30 के अगेंस्ट जो है आपकी जो वैल्यू फॉर द इफेक्टिव एरिया है दैट इज़ 561 mm²। तो आप जैसे इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे इस लोड से, इस स्ट्रेस से, तो आपके पास लोड की वैल्यू निकल आएगी। तो आप बड़ा इजीली इसके लिए लोड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो आपके पास सेफ लोड है इस नट के लिए M30 सीरीज़ के लिए दैट इज़ 23.56 किलो न्यूटन। इससे आगे चलते हैं। टू मशीन पार्ट्स आर फास्टन टुगेदर बाय टाइटनिंग बाय मीन ऑफ 24 mm टैप बोल्ट। अब ये 24 का टैप बोल्ट जो है वो आपने यूज़ किया दो मशीन पार्ट्स को टाइट करने के लिए। द लोड टेंडिंग टू सेपरेट दीज पार्ट्स इज नेग्लेक्टेड। फाइंड द स्ट्रेसेस दैट आर सेट अप इन द बोल्ट बाय द इनिशियल टाइटनिंग। तो इनिशियल टाइटनिंग में आपके पास जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो आपको 24 mm का टैप बोल्ट दिया है। तो सीरीज में हम इसको देखेंगे कि जहाँ पे आपके पास नॉमिनल डायट 24 है उसके अगेंस्ट जो है आपके पास इफेक्टिव एरिया जो है वो क्या है, और डीसी की वैल्यू हम बेसिकली चाहिए क्योंकि हमें इसमें इनिशियल टेंशन जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमें एंड में स्ट्रेसेस की वैल्यूज चाहिए। तो हम आप क्या करेंगे, M24 से इसको देखेंगे। अब आपके पास जो है इनिशियल टाइटनिंग का फार्मूला जो था हमने पढ़ा था PI = 2840T। अब इसने न्यूमेरिकल के अंदर इसको जो है वो सिर्फ एक केस के लिए डिज़ाइन किया, हम इसको दोनों केसेस के लिए डिज़ाइन करें। इसने डिज़ाइन किया है जब फ्लूइड टाइट जॉइंट चाहिए उस केस में आपके पास वैल्यू होगी 2840। हम इसको दोनों के लिए डिज़ाइन कर देंगे, 2840 के लिए भी और 1420 के लिए। इसने असल में फ्लूइड टाइट की वैल्यू इसलिए ली है कि इस केस में आपके पास ये जो फार्मूला के अंदर फैक्टर जो है ये बड़ा है, यानी कि अगर ये 2840 के लिए सेफ है तो इसका मतलब ये है कि ये उससे हाफ के लिए अल्टीमेटली वैसे ही सेफ होगा, इसलिए उसने बड़ी वैल्यू के लिए इसको डिजाइन किया। सो PI = 2840 × D। हियर द D इज बेसिकली 24, ये DC नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये D है। आपने इसमें पुट किया, आपके पास इनिशियल लोड आ गया। नाउ द फार्मूला फॉर द stress is equals to P is equals to pi/4 DC square into sigma T। अब यहाँ से आपको सिग्मा DC की वैल्यू इसमें चाहिए थी, सिग्मा T निकालने के लिए या स्ट्रेस निकालने के लिए। तो आपने ये डिज़ाइन शीट से जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो देख ली थी। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास ये सारी वैल्यू जो है ये आप पुट कर देंगे। जो सिग्मा T की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 210 मेगा पास्कल। ठीक है, तो मैं आपको डिज़ाइन शीट जो है वो खोल के वहाँ से इसको देख भी लेते हैं हम। चलिए जी, हम बात कर रहे हैं स्क्रू जॉइंट्स के। ये है स्क्रू हैंड। चलिए जी, ये है जी इसकी डिज़ाइन शीट का डिज़ाइन चार्ट। वहाँ से ये सारी वैल्यू जो है हमने पुट की। ये है आपके पास टेबल 11.1। अब इसी न्यूमेरिकल की तरफ वापस आते हैं। इस न्यूमेरिकल में उसने हमें दिया हुआ है जी 24 mm। तो 24 mm देखते हैं किधर है। ये है जी 24 mm कोर सीरीज का, ये है। तो इसमें कोड आया जो है ये कोड आया आगे, ये है 20.32, यही उसने पुट किया है। हाँ, यही उसने पुट किया हुआ है, ये आप इसको देख रहे हैं। और इसमें एरिया जो है वो है 353। तो इस चार्ट से जो है ये सारी वैल्यू है बेसिकली आप लेके कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिज़ाइन का जो चार्ट है ये आपको गिवन होगा। ठीक है जी, ये आगे इसकी फाइन सीरीज है। तो फ़र्क क्या था कोर्स और फाइन का, मैंने आपको कहा था कि एंड में मैं आपको बताऊंगा। फाइन जो सीरीज़ है उसके अंदर जो आपके पास थ्रेड्स हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, बिल्कुल फाइन आपको एक स्क्रू नज़र आता है। तो आपकी जो पिचेस हैं वो छोटी होती हैं, यानी कि कम होती हैं। और कोर्स के केस में क्या है कि आपको दूर दूर नज़र आते हैं थ्रेड्स, उनके दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा होता है। इन दो चीज़ों के ऊपर जो है ये कैटेगराइज किए हैं। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।